Good morning, students. Good morning, parents. Good morning, mothers who are watching. Hope you had a good day beginning, and it's going to be a great day because we have none other than Chef Sanjeev Kapoor. And it was promised to you the other day that I'm going to get him to speak to you for an hour or so, because the first day it was just a 2 minutes introduction, which for a personality like him is too little. Okay, I did introduce, Chef is a Padma Shri awardee, a great award. He's done about 118 kilos of khichdi live, which got him a place in the Guinness Book of Records. He's done about 150 plus books. He's got ready to eat about 200 ready to eat items in the any supermarket shelf, any mall you go, whether you go to Elante or Via Mall here in Chandigarh or Mohali, you go to any shop there, his products, and especially Wonder Chef, which is absolutely beautiful. I did mention a very colorful, very nice equipment which is available, whether it be pots or pans or any other equipment would be found there, and he's doing extremely good in that. Chef, I mean, nobody, I don't need to talk much about him. You see him in the channels. He's the first one, and believe me, he's the first one, my dear students and parents, who brought respect to the kitchen profession. Okay, we, you know, when I started also in the year 1980 as a kitchen guy, during that time, people used to call us cooks, you know, literally, and bola kya banne ja raha hai, cook banne ja raha hai, khana banayega. But Chef Sanjeev Kapoor brought respect to this profession, and after he came in, he popularized the profession so much that ab humko wo izzat milti hai that we are chefs, and the whole world has become so popular that people now, any time in TV, or whether it be his own channel, Food, or whether it's Living Foods, or anywhere, the Master Chef competitions he's mastered in, and he's been a judge there. So it's become very popular now. So without wasting any time, Chef has a lot for you guys today. There perhaps would be a little questioning, and we'll give awards also, like yesterday we did for Rakhi Vaswani. So we'll do it today also in a bigger scale, because it's after all, it is Chef Sanjeev Kapoor. So Chef, welcome on behalf of Chitkara and behalf of the first year students and the entire hospitality team. Let me welcome you today, and all yours, boss. All yours. Thank you very much. Thank you, Ravi. Thank you very much, and good morning to all of you, and welcome. What a great start! And I know कि सब लोग. What I would do is I would start with something which is inspirational, then have fun, and we'll do things in a way that you will enjoy it, and that's my intent. और ऐसा करने में भाषा को ज़्यादा नहीं सोचेंगे, right? And you tell me that which language you want me to speak in, I'll speak in that language. I don't know how many of you speak Russian. I don't know how many of you speak Italian. How many of you speak French? मुझे नहीं पता, right? But if there is a request, we can do that, and we can speak in that language. It's entirely up to you, but we will keep it currently to a language which most people can understand. अच्छा, काफी मैसेज आना शुरू हो गया सर हिंदी में. चलो जी, तो एक काम करते हैं, इंग्लिश हिंदी ऐसे में बात करते हैं. We'll try and see English और हिंदी. Thank you very much. We'll try that. देखो जी, मतलब मैसेज आ रहे हैं चंडीगढ़ तो पंजाबी विच गाल कर लांगे, कोई गाल नहीं है. बिहार में बात करनी है, भोजपुरी में करनी है. We can do in many things. But anyway, so first and foremost, a big welcome. I would say that when you're joining a new college, there's a lot of excitement.
there's a lot of excitement of knowing new things. There's also some fear that पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आता. हमने तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ज्वाइन किया, कलनरी कर रहे हैं, होटल है, इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है, करेंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, राइट? एंड दैट्स समथिंग which is natural. एंड ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहले नहीं हुआ. जब हम लोग ज्वाइन करने वाले थे, I can tell you when we joined, and the reason for joining was कि उस समय 1982 was a time when Asian Games were to be launched in New Delhi, and we could see 9 big hotels coming up. बड़े-बड़े होटल बन रहे थे, and we thought that अरे वाह, चलो होटल नए बन रहे हैं, ये बड़ी opportunity बड़ी अच्छी होगी, right? And उस चक्कर में हजारों लोग जो है होटल मैनेजमेंट के अंदर भागे. मतलब मेरे जैसा बंदा जो लोग कहते थे IIT में जाएगा, चला गया होटल मैनेजमेंट, इतने बड़े-बड़े होटल बन रहे हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट? एंड उसके बाद में कोर्स खत्म कर लिया. पता चला कि वो जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब जरूरी नहीं है कि सब लोगों को होटल के अंदर नौकरी वैसी मिल गई जैसे चाहिए थी. कोई एक मतलब हमारा बड़ा अच्छा टॉपर होता था, वो उसको कैशियर की जाके नौकरी मिली वहां पे हायत होटल में. आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई सेड कि होटल मैनेजमेंट की क्या है, कैशियर की नौकरी ऐसी. सो इट इज नॉट दैट कि पहले बहुत अच्छा था अब ऐसे. आई थिंक every day is a new day, and every day is an opportune day, and that opportunity is what you make of it. It is not कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई आएगा, हम बैठेंगे गुरुद्वारे में और प्रसाद आएगा, लो जी भाई जी प्रसाद दे के जाएंगे, खा लेंगे, हो जाएगा. No, it doesn't work like that, right? उसके लिए भी हाथ जो है बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए भी बिल्कुल प्रसाद भी लेना पड़ता है, उसके लिए भी पहले जाना पड़ता है. You have to work hard towards that. So I would say that now that you have decided where you want to go, and that's the most important thing, because जिंदगी में पता ही नहीं होता जाना कहाँ है. अच्छा, जब नहीं पता होता ना जाना कहाँ है, then it's very interesting. If you don't know where you are going, then all roads will take you there. किसी भी रास्ते चले जाओ, because you don't know where you are going, and you will reach nowhere. But now you know where you want to go. You have come on that path, and that's the biggest decision that you have made. And now the journey starts, or journey is towards the goal. एक लक्ष्य है, you know that अब ये जो journey है, अब इस पे चल रहे हैं, अब तो पहुंच तो जाएंगे. कुछ लोग धीरे पहुंचेंगे, कोई जल्दी पहुंचेंगे, कोई भाग के चलते हैं, कोई कैसे करते हैं. And now what you make of this journey, you can make it boring, you can make it रोते हुए कर सकते हो. Like I say, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी इतनी जर्नी में बहुत स्ट्रगल रही होगी. मैं कहता नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बॉम्बे आया और मैं प्लेटफॉर्म पे सोया था, खाने को नहीं, ऐसा कुछ नहीं. Even if it is, it is not what you make of that journey. It is how you enjoy that journey. मतलब जैसे जिम में जाते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो लोग कहते हैं डोले शोले बन गए, वाह मजा आ गया, right? Now there are some people who are crying, there are some people who are enjoying. Where you want to sit, that is the key. And I can tell you that if you start enjoying each and every day, not only the journey would be fun, it would also be very, very, very fruitful. Because जब enjoy करते हैं ना, तो अपने आप रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं. जब रोते रहते हैं तो कुछ नहीं होता है. जब ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या से होगा, नहीं, you are part of that कि पता है क्या होगा, वो होगा जो मैं चाहूंगा, right? It is not what others will do to me, it is what I will do to what is around me. I can control my environment, I can change things the way they are. It is, why should I wait for others to change things for me? No, I have, अगर हमने environment खराब किया तो हमने किया, किसी और ने नहीं किया, right? It's us who have to make that change. We are the people who make it good, bad or ugly for us. तो अपनी जिंदगी तो ठीक कर ही सकते हैं. उसके लिए किसी को मतलब ये कहें कि उसकी किस्मत अच्छी थी, नहीं, उसने अपनी किस्मत अच्छी बनाई थी. He or she did that. That's the key. So I would say that एक बहुत बड़ी I would say a revolution, and I didn't think of it when I joined, right? Till I started, हमने जब TV में शो शुरू किया, till that time I did not realize
हमारे बहुत सारे 18 सब्जेक्ट होते थे, न्यूट्रिशन भी पढ़ाते थे, मेंटेनेंस भी पढ़ाते थे, नल कैसे साफ करना है, हाउसकीपिंग में टाइल्स भी साफ होती थी, टॉयलेट भी साफ कराते थे, सब कुछ करते थे हम लोग, एंड खाना भी बनवाते थे हमारे से। फ्रेंच 11 कोर्सेज वर व्हाट वी वर टॉट। हमें फ्रेंच का एफ नहीं पता था, उसमें मतलब कि वो हमें सूप बोलते थे, वो पॉइजन होता है, मतलब कि ऑदव के स्पेलिंग याद करते करते एक जिंदगी निकल जाती है, राइट। ना हमने कभी ऑदव खाए, ना कभी हमने वो 11 कोर्सेज करने में हमें तो समझ नहीं आया कि क्या किए। 3 साल के कोर्स में हमारे कॉलेज में एक दिन तंदूर जलाया गया था, एक दिन। पूरी दुनिया तंदूरी रोटी बना रही है, नान कर रही है, और 3 साल कॉलेज के अंदर एक दिन हमारे को तंदूर जलाया, वो भी हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो वहां पे लेक्चरर भी नहीं, जो मतलब सपोर्ट स्टाफ होता है, उन्होंने जलाया, उन्होंने आटा बनाया, उन्होंने रोटी बनाई। थैंक यू वेरी मच। 3 साल में हमारी ये कुकिंग हो गई, पूरी क्लास हो गई हमारी, राइट। एंड हम सीख क्या रहे थे, हम तो सीख रहे थे, मतलब हमें वो वाइन भी ऐसे सिखाते जब इंडिया के अंदर वाइन का नामो निशान नहीं, जहां हमें बोर्डो बरगंडी कि उसके अंदर बोतल में ऐसे होता है जी, ये पंट होता है जी, मतलब जो हमने कभी कुछ नहीं यूज किया। आई कैन टेल यू दैट ऑल द ट्रेनिंग दैट वी डिड, जो पूरे 3 साल थी, उसका कोई हमने कुछ नहीं किया। तो वी डिडंट इवन रियलाइज दैट व्हाट वी वर डूइंग। ना तब गूगल था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था हमारे पास। ना ऐसे कोई होता था कि चलो जी आज पहला दिन है, इनको बुला लो, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, कुछ ऐसा नहीं था। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। Today there are so many tools, there's so many things that you have to you can get your learning from. जब टीवी शुरू हुआ, that time I realized कि अच्छा, हम तो काम करते हैं होटल के अंदर, रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं, वो एक अलग होता है। घर में पीली दाल होती है, बाहर दाल मखनी होती है, राइट। तो एक घर का खाना होता है, एक बाहर का खाना होता है। हम जो है, हमें घर का खाना तो हमें नहीं आता, क्योंकि हमें सिखाया नहीं था। नॉट दैट वैसे हमें बाहर का भी नहीं सिखाया था। हम तो बाहर में जब नौकरी करनी शुरू की, तब हमें जाके सीखना पड़ा वो। हम जब होटल में गए नौकरी करने के लिए, तो हमें लगा हम तो अब 3 साल का कोर्स करके आ गए, हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग बन गया, बहुत कुछ हो गया। पहले दिन में आटे दाल का भाव पता चल गया, उन्होंने कहा जाओ ट्रॉली लेके जाओ, इतने ये उठा के लाओ, इतने उठा के लाओ। तो पता चला कि हमने मतलब एक्चुअली वी डिडंट इवन क्वेश्चन, वी डिडंट आस्क, वी डिडंट इवन नो, और हमें किसने गाइड भी नहीं किया। हम भी स्पेलिंग ही याद करते रह गए, और दब के क्या होते हैं, कैनपीज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई खा रहा है, ना कोई कर रहा है, बट फिर भी हम वही करे जा रहे थे। रेड वाइन हमारे को जब पढ़ाई गई, खाली बोतल दिखाई, कभी वाइन कैसी है तो वो भी कभी हमें कॉलेज में नहीं दिखाई थी, होती नहीं थी। मतलब नॉट जस्ट रेड वाइन और व्हाइट वाइन और एनीथिंग, मतलब ये पता होता था कि अच्छा जी ये एक वर्मूथ होती है, एक पोर्ट होती है, एक शरी होती है, ये होती है, क्या होता है, कैसी दिखती है, क्या स्मेल होती है, कुछ नहीं हमें पता था। एनीवे, so same was the case with food also. चीज के तरह तरह बता देते थे हमें। मोज़रेला तक तो हमने देखा नहीं था, इंडिया के अंदर होता ही नहीं था चीज। एक चीज बड़ी मुश्किल से मिलता था, अमूल का, वो भी गर्मियों में बंद हो जाता था, मिलता ही नहीं था। एक ही चीज होता था, एंड हमारे लिए तो वही चीज बहुत बड़ी चीज होती थी। उसके अलावा घर में जो पनीर बन जाता था, वो भी बहुत बड़ा होता था। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ नाउ। अब उसके अंदर घर के खाने की तो हमने कभी इज्जत की नहीं। हमने कहा कि घर का खाना जो है वो तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम बहुत बड़े हैं, हम आए, हमने कॉलेज के अंदर पढ़ाई की, हमने ये किया, एंड रियलिटी वाज कि उसके अंदर भी जीरो, राइट। नाउ देन हाउ डू यू टेक द वर्ल्ड ऑन? एंड देन आई रियलाइज दैट थ्रू व्हेन आई स्टार्टेड टीवी, कि टीवी कहाँ जा रहा है? टीवी जा रहा है घरों के अंदर। घर में जिनको खाना बनाना आता है, अब उनको क्या सिखाओगे? उनको कुछ नया सिखाना पड़ेगा। एंड देन बट नए में इफ यू स्टार्ट टीचिंग देम रुमाली रोटी, वो तो घर में बना नहीं सकेंगे, राइट। रुमाली रोटी उन्होंने बनाई, और रुमाली रोटी हमने तो उड़ा दी, और पता चला उड़ी और उनके पंखे पे लटक गई, और हमने कहा कि ओहो, तो हमारे तो शो देखना बंद कर देंगे, राइट। और यू शो देम रसमलाई, और पता चला फ्लैट दही भल्ले जैसे वो भल्ले बन गए, रसमलाई तो बनी नहीं। देन व्हाट डू यू डू? सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग little bit of home cooking, what I had seen in my house, my mother, father, everyone, कि अच्छा घर में खाना क्या होता है. So and that I started कि how can I make our home food little different, उसको थोड़ा सा अलग कैसे कर सकते हैं, उसमें मस्ती कैसे ला सकते हैं. Now मस्ती was not very difficult. घर के अंदर बहुत हो गया, बहुत गार्निश का मतलब होता है कि धनिया डाल दिया. उस वक्त तो खैर होटल्स में भी ऐसे होता था कि मतलब दाल बनाई, उसके अंदर धनिया डाल दिया तो बहुत बड़ी गार्निश होगी. मैं कहा चलो कुछ अलग करना है, दाल तो बनानी आती है, धनिया भी पता है, पर एक काम करते हैं, धनिया की जगह ना पुदीना डाल देते हैं ना. ओहो,
दाल में पुदीना कैसे डाल सकते हैं पीली दाल के अंदर? नहीं, टीवी में शो आ रहा है, संजीव कपूर बता रहे हैं, तब तो संजीव कपूर भी इतना बड़ा नाम नहीं था, बट कुछ तो होगा इसके अंदर, राइट? एंड व्हेन आई डिड दैट, व्हेन पीपल ट्राइड इट, अरे कुछ तो अलग है। नाउ अब बेचारी दाल को थोड़ी पता था उसके अंदर यू हैव टू पुट धनिया डालना या पुदीना डालना है। बेचारी दाल तो गरीब सी बनी हुई थी, राइट? आपने धनिया डालना था या पुदीना डालना था, व्हाटएवर यू डिड, एंड इफ यू मेड दैट स्लाइट चेंज, what it did, people started to note, people started to say, oh wow, this is different, this is the... Now I still remember my first episode, I cooked a dish called sham savera. हम लोग शादी वगैरह बैंक्वेट में we used to make पालक के कोफ्ते बनाते थे, and पालक का कोफ्ता in पालक gravy was a done thing at that time. It was a hit, मतलब पालक का कोफ्ता, पालक gravy, nobody had questioned it. अच्छा, because TV was a visual medium, I thought that थोड़ा सा उसके अंदर कुछ वो लाना चाहिए, कलर लाना चाहिए. So I stuffed that पालक का कोफ्ता with पनीर, उसकी गोली सी बनाई और उसके अंदर डाल दिया. जैसे अंडे में बाहर सफेद होता है, अंदर येलो होता है, इसमें बाहर ग्रीन, अंदर सफेद. I did nothing. पालक और पनीर वैसे ही लोगों को पसंद आता था, right? पालक पनीर is a good combination, so that was good. तो मैंने कहा इसको मैं पालक ग्रेवी में डाल दूंगा तो मजा नहीं आएगा. What had happened just before this, there was a magazine who was doing Independence Day issue. They wanted something तिरंगा for me. तो मेरे तो दिमाग में चल ही रहा था पालक का कोफ्ता बीच में पनीर वाला. तो मैंने कहा इसको अगर ऑरेंज ग्रेवी में डालें तो कैसा रहेगा. सबने बोला पागल हो गया है, पालक का कोफ्ता ना पालक ग्रेवी में डलता है, ये ऐसे बनता है. अब सब जब मुझे बोलते हैं ना कि ऐसे ही होता है, फिर मैं बताता हूँ कैसे होता है. सो व्हाट आई डिड, हमारे पास मखनी ग्रेवी होती थी, मैं इसके साथ ट्राई करता हूँ. सो आई डिड प्लेटिंग. अच्छा, तब प्लेटिंग का भी आइडिया नहीं होता था, but I had come back from New Zealand where I used to work, and I had worked at international levels. I understood what plating meant and all of that, and I did that. And that magazine decided to put that picture on cover of that magazine. It was so good because it looked so good. तो मैंने वही डिश खाना खजाना में बना दी पहली बार, and it became so popular, so popular. आज मतलब इतने रेस्टोरेंट में जाता हूँ लोग, मैं कभी देखता हूँ उसमें शाम सवेरा, फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, रॉयल्टी मुझे नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं. It's becoming popular. So the point is that if you start thinking in life, and it's not about food, it's about everything, you can do that. So I would say what has happened in 6 months, it has opened many doors for many people. And what has happened? There are people I know who have started cooking from home. So a friend of mine, not a chef, husband, wife, husband owned a PR company, wife worked with a marketing agency company. Both of them quit their job. They got a chef from me. He wanted to learn. Wife is a very good cook. He wanted to learn. He says, "Paji, mujhe na kisi bhej do, main usko khana banana seekhna hai." I said, "Chalo." So we assigned a chef, and he learned. And now they are so busy. अभी उन्होंने एक ब्रांड शुरू किया, नायर ऑन फायर. सद्या ओनम के अंदर उन्होंने बनाया. 2 दिन की सेल, 18 lakhs they did. 18 रेस्टोरेंट नहीं है, ना, सिर्फ घर में खाना दे रहे हैं. Now imagine. Now this is an opportunity which somebody who did not know this, who did not know this trade, did not. So look at what people who are in this field, what they can do. But yes, अगर ये सोचेंगे कि ये हम क्यों करेंगे, why we would do it, no, it's the opportunity. So now let me tell you, when Khana Khazana started, most chefs were not willing to look at it. They said, हम क्या करेंगे, हम नहीं ये खाना बनाएंगे ऐसा वाला, मतलब हम टीवी पे थोड़ी करेंगे, हम तो बड़े रेस्टोरेंट. And I just used to smile, and I say I knew what I was doing. When internet came, I launched my own website. I exactly knew what I was doing. So during this time also, what have we worked on? We just launched 3 days ago. We launched a meal kit concept called Fresh Kit, where you would get everything which is pre-cut, fresh. And so let's say there is vegetable biryani, or so there is rice that's there, that's not cooked, but there are vegetables that are there, that is cut, prepared, packed, and there is a paste that's biryani. There's fried onion that's there, and that goes in a box with a full-fledged recipe. And there's a link to Alexa also, that Alexa can tell you the recipe. And we've just launched this in Bangalore.
for home use. Why could we do it? Because I know what will be needed. Now, let me tell you, it's not that the world is not listening, world is not changing. And why I'm saying this is that you have joined college, and college have to be governed by many things. I'm sure that my little interaction with Ravi and his team at Chitkara is that they are proactive. जैसे मतलब अब ये सेशन करने को जरूरत थोड़ी थी, क्या था, अपना आए कॉलेज में कर लिया, but they want to make sure that they are thinking differently, right? Now, I would say that when that is the case, you stand in good stead that आपके लिए life well is easy हो रही है. I can see that. But what is important is that world is changing. Course material may or may not change as fast as it should because it may be governed. But be smart, look around and see what is happening. Now, let me share with you. About 2 weeks ago, I got a call from IIT Mumbai. IIT, बहुत बड़ा institute है, and I got a call from IIM Ahmedabad, Indian Institute of Management, Ahmedabad. Now, these two are engineering management. These are two biggest names, I would say. For what? They invited to speak to me about home cooking and about they want a problem to be solved. Problem क्या है? Problem है घर में रोटी बनाना. घर में रोटी बनाना कहते हैं कोई solve भी नहीं कर रहा ये problem. Now look at it. हमारी जो industry है, who is capable of doing it? Are we looking at it? No, we have not looked at it in all these years. Is there a course में हमारा कुछ ऐसा वो भी होगा? नहीं, we will not even think कि घर में जो खाना रोटी है, which is consumed much more than all the naans and rotis and parathas that are sold all across, including all restaurants in best of the times, right? So what is the bigger opportunity? So in terms of size, there's a bigger opportunity that's there, which is in homes. So हम अभी तक काम क्या करते थे? हम काम करते थे out of home consumption, restaurant में, hotel में. This is out of home. But अभी क्या हो गया? Conversions हो गई. अभी ऐसे हो गया कि जो बाहर वाला खाना है घर पे आके डोमिनोज को समझ आ गई, उन्होंने कहा कि चलो ये लो जी बाहर वाला पिज्जा घर में का. एंड सडनली दे आर लिस्टेड एंटिटी है, मतलब इतनी वैल्यू किसी फूड F&B कंपनी की इंडिया में, फूड सर्विस कंपनी की इतनी नहीं हुई. व्हाट दे रियलाइज, दे अनलीश द पावर ऑफ आउटसाइड फूड एट होम, राइट? वाओ. बट व्हिच इज अ बिगर फूड? Bigger food is food consumed at home. And who's seeing that? IIT and IIM Ahmedabad. Who do they contact? They contact me, who has this understanding. But vision wo leke aa rahe hain. Now, the point that I'm trying to say is that आप इस industry के अंदर आए हो, and through that guidance, अब जैसे ये है, मैं आपकी आंखें खोल सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ. जैसे आपने डिसाइड कर लिया, I can tell you that, okay, ये सोचना शुरू कर दो, इस तरह से देखना शुरू कर दो. व्हाट, एक अपना कोर्स पूरा करो, मेहनत करो, अच्छे से करो, मार्क्स अच्छे लेके आओ, सब कुछ करो. Well, that's one thing. But keep your ears and eyes open. Do things which others are not doing. People will laugh at you. People will say, पागल है, क्या कर रहा है, right? मतलब मुझे अभी याद है, अभी मुझे पता चला कल राखी थी, तो याद है जब उसने कुकिंग क्लासेस शुरू की थी, तो बीवी से कि अरे कौन जाएगा. लवली गर्ल. एंड आई वो हमेशा कहती है, शेफ मैं बहुत आप जैसे करते हैं ना, तो मैं बड़ा करती हूँ. एंड वी गेट हर ऑन आवर टीवी चैनल आल्सो. द अपॉर्चुनिटी शी हैज क्रिएटेड फ्रॉम होम, टीचिंग होम कुकिंग, एंड ऑल्सो देन कि अब तो मैं बेकिंग भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी सिखा सकती हूँ. ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मतलब बहुत सारे बड़े बड़े जो शेफ हैं होटल में, वो उतना नहीं कमा सकते जितना वो कमा सकते. एंड दिस इज बिफोर people say कि नहीं उसका तो नाम हो गया. No, 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 no. This is before she got on TV. Remember this. संजीव कपूर नौकरी भी करते थे, टीवी में आए, बड़े हो गए. No, I'm giving an example who became big from what she did. That was different. तो ये ध्यान रखो, there is a bigger opportunity. So at this point मैं क्योंकि एक आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करता हूँ
कि रोटी के ऊपर सो आपका दिमाग चलना थोड़ा शुरू है। घर में कैसे होता है, घर के अंदर चलो एक लेट मी शेयर समथिंग विद यू, आपके साथ में शेयर करता हूँ मैं। लेट्स सी दिस। तो ये जो है ये मैंने IIT के लिए किया था ना। कैसे रोटी बनती है, चकला बेलन से घर में ऐसी बनती है, पर अभी क्या हो गया कि इसको थोड़ा सा बेटर करना है तो ले प्रेस करने वाली ऐसी मशीनें आ गई। ऐसा नहीं कि इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी जो फ्लैट ब्रेड बनती है, जो रोटी बनती है, वो इस तरह के चकला बेलन की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेस करने से हो गया, राइट? क्योंकि उसमें स्किल लगानी पड़ती है ना, इसमें स्किल थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया उसको, फिर मैकेनाइज्ड वाली थोड़ी आ गई, फिर उसके बाद में ये छोटी सी ना एक क्या है ये रोटी की मशीन आ गई कि मतलब अरे वाह, इसके अंदर कैसे आ गया ये जो है रोल भी किया जाए। पास्ता मशीन कैसे होती है, उसमें से पास्ता समझ लो कट गया है, गोल बन गई, रोटी बन गई, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया रोटी बन गई, राइट? एंड आप रोटी बनाते रहो घर के अंदर, ओके। उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में रोटी जो है थोड़ी प्रेस करने से बनी, थोड़ा सा आपने उसको प्रेस किया, फिर इस हैंडल से इसको प्रेस करना, पेड़ा रखा, प्रेस किया, भाई वाह, वेरी नाइस। रोटी जो है आपने प्रेस की। ये दो प्लेट्स हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ से गर्म होती है, तवा तो एक ही साइड से गर्म होता है, बट अगर किसी चीज को अगर ज्यादा स्पीड में करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ से गर्म कर दो, प्रेस भी हो जाए। तो आपने इसको रखा, आपने प्रेस करना शुरू कर दिया, अरे वाह रोटी फूल भी गई इसके अंदर, राइट? नाउ ऑल दीज थिंग्स आर एड्रेसिंग अ नीड एट होम, जहाँ पे क्या है स्किल की कमी जो घर पे होती है कि सबको रोटियां नहीं बनानी आती, स्किल की कमी कम से कम निकल जाए, राइट? नाउ अगर स्किल की कमी निकल गई तो लेट्स लुक एट ये थोड़ी सी बड़ी वाली मशीन, राइट? नाउ इफ यू लुक एट इट, इसके अंदर सेम मशीन है, बट नाउ बड़े सारे गियर आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई। अब रोटी जो है थोड़ा सा अपने आप कटी भी, ये बीच में सेपरेटर लगाया और नाउ इट इज कमिंग आउट आराम से। Now there are more rotis that are there, right? Now let me show you. This is I know how many of you know अक्षय पात्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है, 18 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाते हैं इंडिया के अंदर स्कूलों में, राइट? वो उन्होंने कहा कि हमें इतनी रोटियां बनानी पड़ती हैं, हम क्या करेंगे, राइट? तो देन दे डेवलप्ड अ रोटी मेकिंग मशीन। ये लो जी, ये आटा गूंद रहा है, राइट? आटा गूंदने की मशीन है बड़ी सी, कितनी बड़ी मशीन। अब इसमें रोटियां कट के, लुक एट द नंबर ऑफ रोटीज, लुक एट द नंबर ऑफ रोटीज कि किस तरह से रोटी है। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स नॉट कि सिर्फ कट गई, उसके बाद में अब ये सिकनी भी शुरू हो गई है, ये पकनी भी शुरू हो गई है। Look at this. None of the hotels or restaurants use this, right? Because उन्हें जरूरत ही नहीं है, कहते नहीं हम तो अपने आप खुद बना लेते हैं। अरे खुद बनाते भाई, इतनी क्वांटिटी में अगर इतना रेस्टोरेंट चलना शुरू हो गया तो कोई तो मशीन लगानी पड़ेगी। बट हम मशीन पीसने के लिए लगा लेते हैं, रोटी के लिए तो नहीं लगाते। Now the point that I am making is that we have to make sure that अगर हम we have to make sure that अगर हमें कुछ अलग करना है, then we will have to start thinking differently. We will have to start looking at opportunities कि इतनी सारी opportunities हैं। ऐसा नहीं है कि opportunity हमारे पास में नहीं है, opportunity बहुत सारी हैं आसपास हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। Now with those opportunities, what we make of it, and I want to open your eyes toward the opportunity which is lying in home side of food. So let me give you a little bit of आपको थोड़ा सा डेटा देता हूँ। पिछले 6 महीने से होटल्स बंद हैं, पूरी दुनिया में बंद है, कभी थोड़े बहुत चल रहे हैं, चलो जी कोई बात नहीं, ओके। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स बंद हैं, ओके, मान लिया ये टेम्पररी है, ओके, सो फाइन, इट इज टेम्पररी। बट
Do you know what is the consumption of food at home that has gone up? All companies, जितनी भी companies हैं जो खाने वाली हैं, they have done exceedingly well. इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है. They have done more sales, they have made more profits, they have made more money. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट वाला जो है उसकी जगह उन्होंने कहा हम घर घर में खाना भी करते हैं, बिकॉज not out of anything else, choice ही नहीं थी, उन्होंने कहा चलो करते हैं. There are some people who are still waiting कि अरे देखते हैं कि पता नहीं बाहर क्या होगा. Now there are people, जैसे मैंने अपना दोस्त बताया कि नायर ऑन फायर, वो ओणम सद्या करके 2 दिन में 18 लाख की से. This is real, this is not कि बनाई हुई फिगर्स नहीं है. He is a very close friend of mine. And कि घर से is it possible? Yes, it is possible. अब उसने पूरा अपना ब्रांड बना लिया जोमेटो पे. Yes, only in Bombay. अभी मेरे से परसों फोन आया कि पाजी मुझे ना जरा दिल्ली से इंक्वायरी आ रही है तो मैं फ्रेंचाइज कर दूं. मैं कहा नहीं, चुपचाप फोकस है, build one market and then go to the other market. First be consistent. ये तो एक ओणम हो गया, उसमें हो गया. So I had given him a target that first consistently for 3 months do sale of 10 lakhs. So he called me and to tell me that he's crossed that. तो अब कर दूं. मैं कहा नहीं, अब दूसरा टारगेट है, 20 पे जा. Now what I'm trying to say is that the opportunities will be there. कुछ लोग होंगे वो सोते रहेंगे, रोते रहेंगे. कुछ लोग होंगे जो मतलब जाग जाते हैं, दूसरों को भी जगाते हैं, and then they start working on it. They don't wait. They know that okay, ठीक है, ये situation है, because see situation change होती रहती है and this thing happens. अभी हम ये कह रहे हैं अरे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, it is hit. So what? People have not stopped eating. People have not stopped being hospitable. Right? There are many other things, many other opportunities that will come. In last 5 years, do you know what was the biggest threat to hotel industry? Was not a hotel chain. Was a tech company, Airbnb. उन्होंने सबकी ऐसी तैसी कर दी थी. सारे होटल वालों की नींद हराम हो गई थी. ये क्या हो गया? अरे तुम भी तो ये कर सकते थे, राइट? देन मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरा बैच मेट हैं जो ताज के एमडी हैं, पुनीत चटवाल. तो हम बात करें. सो he's worked in Germany, he's worked outside India, he's a German national. तो यहाँ पे आया तो जब ये हो गया, so I was talking to him, मैंने कहा पुनीत क्या हाल है? He says कि नहीं हालत तो खराब ही है, सब कुछ है, but he says but fortunately what we did, हमने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें कर ली. So not only they launched an app, Cumin करके उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिससे घर पे रेस्टोरेंट जैसा आप पूरा एक्सपीरियंस घर पे वो क्रिएट कर देंगे. Right? Now Taj is doing that. Other hotel groups are also doing that. Not only that, they started managing guest houses of their other companies. कि पहले guest house hotel वाले कहते हम थोड़ी guest house करेंगे. No, but that's a big opportunity. And he suddenly says, Tata's has so many other properties and everyone is calling us. हमारे पास अभी इतनी bandwidth नहीं है that we have increased our business. Now understand that if you start, it should not be that it should take a pandemic to open your eyes. It should be something that you should realize every day you wake up and you should be able to see that opportunity. You should know that ki opportunity to hai and what I'm going to do it. अगर आप pandemic का इंतजार करोगे, मतलब कि जैसे कुछ companies जैसे कैमरा बनाते थे, right? कुछ companies ने तो कहा कि हम जो हैं हम नहीं चेंज होंगे एंड वो कंपनी चली गई क्योंकि कैमरा तो फोन में आ गया, राइट? कुछ कंपनी कहा कि नहीं वी विल इनोवेट. सो इट इज द अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज बी देयर. वर्ल्ड इज चेंजिंग, वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप. समटाइम्स फॉर गुड, फॉर सम टाइम बैड, बट एक्चुअली इट इज ऑलवेज चेंजिंग. सम पीपल कैन मेक गुड ऑफ व्हाट इज बैड फॉर अदर्स. अब मतलब पूरी दुनिया में बाढ़ आ गई, बत्तख को फर्क नहीं पड़ेगा. डक विल नॉट गेट, मैं तो पानी में थी, राइट? मिले तो अच्छा हो गया, राइट? सो इट विल ऑलवेज बी दैट how do you adapt to that change? Are you able to foresee that change? And the good thing is the category
of hospitality management, category of culinary is a very, very large category of consumption. And that consumption, so there's an inherent need for people to be hospitable. India is a country, Atithi Deva Bhava. It is inbuilt to us. हमारे तो मतलब अतिथि देव भव, हम तो अतिथि को गॉड मानते हैं. It is intrinsic in nature. We enjoy when we invite people to our house. When हमारे लिए मतलब गेस्ट जो है वो पेन नहीं होते. मुझे अभी भी याद है कि मैं न्यूजीलैंड काम करने के लिए गया और मैं कुछ साल वहाँ रहा. एंड मतलब इट वाज अ प्रोजेक्ट. तब हमें बड़ा अजीब लगता था. क्यों? किसी के घर जाना है तो पहले उसे फिक्स करो. वो आई एम कमिंग टू योर हाउस फॉर टी. अच्छा तो मतलब कब? अरे यार चाय पीने आ रहे थे, नहीं कैसे आप पे मजा आ रखे हैं, राइट? नाउ द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट एज इंडियंस we are very hospitable, and that's the opportunity, and it's a global opportunity because that's something that's inbuilt into us, our system. We breed hospitality. And so आपका जो मतलब biggest thing is there, भगवान की उससे मतलब कुछ लोग सफेद होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, आप hospitable है, right? So it is something that is inbuilt into you. It is the biggest thing. Well, I would say that Southeast Asia, we are lucky. Thailand, they are also very hospitable, right? That's also inbuilt to them. Similar culture. So I would say that enjoy this period. Enjoy this, that you have something that is inbuilt to, intrinsic to your nature, intrinsic to your culture, and you have that. And in that, you have come to polish that, and you are come to a university to polish that. And in culinary also, I can tell you that the consumption, you are in a business of consumption. सोचो कोई फैशन में होते हैं, आप लिपस्टिक वाली कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं, तो मास्क के ऊपर लिपस्टिक लगाते क्या? खाना तो खा रहे हो, राइट? तो इमेजिन दैट यू आर इन अ कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन. यू आर इन अ कैटेगरी. दिस इज टेम्पररी फॉर द वे इट वाज. फॉर्चुनेटली you are part of what will be, so you don't have to worry. Worry is for people who are already part of it because they are breathing the old air. You will breathe new air. You will define it. So you are the lucky lot. I would say, मतलब मैं तो बड़ा excited हूँ for people say, अरे आप इतना excited कैसे? मतलब industry के, I say I am very excited. So because, so मेरा भतीजा है, he was working with BCG, Boston Consulting को बहुत बड़ी company है, world's great company on consulting. So he got admission into one of the top colleges, MBA के लिए उसने INSEAD है पेरिस में, तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया. So he says कि चाचू अभी तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी, उसकी इतनी फीस है, 1.5 करोड़ फीस है, उसका इतना लोन है, ये है वो है, क्या होगा? मैं कहता तो खुश हो. कहते क्यों? मैं कहते किस लिए खुश हो? Because you are young. Now the thing that you would learn, you would be learning for today. And for companies to hire you, your cost of hiring, new talent, new knowledge, new energy, everything is much lower than the deadwood that's there. You will be replacing much fast. So you should not be worried. It's people like us who have to innovate and think, what will we do new? What is it that we bring to the table? Not everyone can do that. But young people have that advantage because you are breathing today's air. You are gaining today's knowledge for tomorrow. So tomorrow is bright. You are tomorrow. And I can tell you, you are in a category of consumption with something which is naturally been given to you, which is Indian hospitality. There's no need to worry. And I can tell you, anyone who can start looking at opportunity and start working today, मतलब ये सोचना शुरू कर दो that ये कॉलेज खत्म होगा, उसके बाद में कुछ करेंगे. नहीं, आज से शुरू कर दो. If I were you, I would start today. I would think कि अच्छा और क्या, दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए. इससे पहली बात तो ये है कि start thinking like an entrepreneur. Entrepreneur कैसे होता है? घर में ना जो मदर होती है ना, वो फादर से बेटर entrepreneur होती है. पता है क्यों? Because she manages so many things. She manages to do many things intuitively. ऐसी मल्टीटास्किंग, ऐसी कॉस्टिंग, ऐसा मतलब अभी घर में दूध कितना आया है,
आधा लीटर है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, वो कहीं लिस्ट हो रहा है, मेड को छुट्टी दी है, नहीं दी है, कितने दिन दी है, क्या किया है, everything is there, is managed, and while not getting really paid for all this, and all that is very, very complex. So I would say that start learning skills which are beyond the college. So जो college एक चीज सिखाएगा, एक दूसरी अपने साथ में करोगे. And remember, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी सेम मिलती है. व्हाट यू मेक ऑफ इट, उसको आप एम्बेलिशमेंट कैसे करते हो, राइट? वो मतलब बाजार में जाते हैं ना, बहुत साल पहले क्या होता था, मुझे याद है कि दिल्ली में एक मोहन सिंह प्लेस करके जगह है, वहाँ पे तब जीन्स नई जीन्स, सोचो नई जीन्स का, नई का क्या मतलब है, बट इन इंडिया देयर वाज अ टाइम व्हेन जीन्स, डेनिम जीन्स वर न्यू, राइट? एंड उसमें क्या होता था कि एक ब्रांडेड थोड़ी बहुत होती थी, इंडिया में ऐसे इतना मिलता नहीं था, बट मोहन सिंह प्लेस में वहाँ पे जीन्स सस्ती मिलती थी. उसमें ना लोग क्या करते थे, उसमें ब्रांड्स के वो पैचेस खरीद के वो लगवा लेते थे और वो मिल जाती थी, राइट? और क्या होता था कि कोई सस्ती, कोई महंगी, कोई ये, पर जीन्स वो सारी वही होती थी. वो ब्रांड डिफाइन, ब्रांड क्या करता था, ब्रांड इसको एम्बेलिश करता था. बट सम पीपल विल से कि नहीं, हम तो एम्बेलिशमेंट जो है वो भी हम उसको चेंज कर लेते हैं. तो कपड़ा सबका सेम है, सिलाई कैसे कर रहे हो, उसकी कट कैसा है आपका, उसके आप और कितना सोच रहे हो. सो प्रीमियम कम्स विद दैट. कपड़ा सबके पास सेम है, याद रखना. हाउ यू कट इट, हाउ फाइनली यू कट इट, हाउ यू कस्टमाइज इट. मतलब आपके पास में कोई आया, आपने उसका समझा नहीं है, आपने उसको, उसने स्किनी जीन्स मांगी, आपने पजामा बना के दे दिया तो हो गया काम आपको, राइट? नो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमाइजेशन, you have to understand techniques, you have to understand skill, all that. कपड़ा सबके पास है, कैंची सबके पास है. Remember what you make of it, what you do with it, and किसके लिए आप बना रहे हो. I think world is on I think आपके लिए इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी एक्साइटिंग दुनिया है. आई एम एक्साइटेड फॉर यू, आई कैन टेल यू दैट. मतलब मेरे को ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब आप किस उसमें जा रहे हो, विच विल बी सो एक्साइटिंग. एंड इट्स समथिंग दैट आई कैन टेल यू दैट नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन. आपकी जो फियर्स हैं, थ्रो देम आउट, start looking at opportunity. If you were to work, मतलब my father was a banker and he would always say कि हमें ना डेबिट और क्रेडिट पता होता है, तो हमेशा बैलेंस चेक कर लो कि डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, ठीक है? तो अपना ये बैलेंस जब भी चेक करोगे ना, देखोगे कि फियर का ज़्यादा है बैलेंस या अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा है, तो हमेशा अपॉर्चुनिटी ही ज़्यादा होगी. सो व्हाट यू वांट टू वर्क मोर ऑन. सो आजकल क्या हो रहा है, people are feeding fear more. See, there are people, मतलब हमारे घर में हम न्यूज़ चैनल नहीं चलाते हैं, हम ये बकवास वाली कोई न्यूज़ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं करते. Because I don't want to feed on fear. I don't want to feed the fear. I want to feed the opportunity. I want to learn more. It is the same mind. What you give it to, आप किस चीज़ पे वो अपना एफर्ट लगाते हो, it's entirely up to you. आपने उसको वेस्ट करना है, यूज करना है, यूटिलाइज करना है, मेक मोस्ट ऑफ इट, हैव फन विद इट. दैट्स अ कॉल दैट यू हैव टू टेक. आज भी हो सकता है कुछ लोग कोई अपॉर्चुनिटी मिली, वर्ड्स ऑफ विजडम थे, हो सकता है उन्होंने लॉग इन ही नहीं किया, हो सकता है सोते रह गए, राइट? कुछ लोग होंगे शायद क्योंकि शायद अटेंडेंस ऐसे लग रही हो, पर म्यूट पे करे हुए हैं, वीडियो बंद है और घूम रहे हैं अपना, कुछ इधर घूम रहा है, पता नहीं कि क्या सुन रहे हैं. There's an opportunity. Opportunity is like a knock on the door. जब वो दरवाजे पे भगवान आके खटखटाता है और उस समय आप सो रहे थे, दरवाजा नहीं खोला, तो ये मत कहना कि किस्मत खराब थी. आप तो, as I said, हो सकता है इस सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भगवान दरवाजा खटखटा रहा है, बहुत सारे प्राइजेस की भी बात हो रही है, हम ये भी कह रहे हैं, तो बहुत लोग सोते रह सकते हैं, right? So it is entirely up to you. I can tell you that I am excited that you are part of these courses at Chitkara, and I can tell you, you have a great set of leaders who are leading you, right? From all the people, Ravi is there, Amit is there, everyone is making sure that you do well. They're getting paid, that's one thing, but
ये बिना कहे भी हो सकता था, right? But they want to push this. They want to, so to get Sanjeev Kapoor on a session like this is not easy, I can tell you. Ravi went through to reach me, right? He worked at it. It's not that वो एक बारी में नहीं होता है. It is something कि उनके साथ में कोई था जो who worked with us, my uncle, he says, chef please आप ना मत करना ये, हाँ आप please ये जो है. So I'm telling you that it's not that कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाता है. So you're lucky. Enjoy that luck, have that, and make most of it. And आपके साथ में I'm sure that we'll get more opportunities to engage with you. I'm sure जब ये खुलेगा, I've already said and we have said कि मैं आपके यहाँ पे आके चक्कर भी मारूंगा. बिल्कुल चंडीगढ़ वैसी मजेदार जगह है, right? So I would do that and wish you all the best. Enjoy, have fun, and if you have any questions, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, feel free to ask. Thank you. Chef, a little on your world record, if you can throw a little light on that, and आपने ये entrepreneurship कैसे शुरू की, perhaps? अच्छा, okay. Because that's again one of our subjects in the thing. Okay, nice, very good. हमारे तो कोई subject नहीं था ये entrepreneurship. So anyway, so पहली बात तो एक आपने जब introduction किया ना तो आपने 118 किलो बोली थी, 918 किलो है पहली बात. Oh boy, oh god. कोई गाल नहीं कि फर्क पड़ता है. 118 भी बहुत ज्यादा होता है घर के हिसाब से देखा तो 918 कुछ नहीं फर्क. It was very interesting. Yeah, no worries. So it was very interesting because Government of India, Ministry of Food Processing was doing something. They were doing World Food India, a big platform for food companies of the world. They wanted to showcase India. कि इंडिया में इतना फूड प्रोड्यूस होता है. इंडिया इज मतलब काफी चीजों में लाइक बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड है इंडिया, राइट? बहुत सारी चीजों में तीसरे चौथे नंबर पे है. फ्रूट्स, वेजिटेबल, बहुत चीजों पे ऐसे है, बट प्रोसेसिंग उतनी ज्यादा नहीं होती बिकॉज पर अगर हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए, देयर इज मार्केट. सो इंडिया वांटेड टू डू दैट, इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू डू दैट. So I was invited by Government of India to work on it, and I was talking to the minister, who's still the minister food processing. She's there, and उनसे मैं बात कर रहा था, and she इसके लिए आप please कुछ curate करिए. We want to showcase India, we want to do this, and I want to create that nice buzz because nobody knows us. So I said, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, कुछ धमाके करने पड़ेंगे. We'll have to create something. He says, मतलब, I said, we will have to create something that the world sees and do something. And it has to be something Indian. And that's when I said कि कुछ Guinness World Record बनाते हैं. 3 दिन का था, तीनों दिन एक करेंगे. But anyway, cost देखते हुए, सब देखते हुए, हमने we agreed on one day. India Gate launch में बहुत बड़ा, it was the biggest food event that India has ever had. I can tell you that. So वो था, तो उसके लिए हमने काम किया. And I can tell you, वो उसके लिए पूरा सेशन चाहिए होगा on that खिचड़ी. It was मतलब मैं क्या बताऊँ, just to tell you, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, and that's just not even 1%. थोड़ा सा so करीब 2 दिन पहले, so we are trying that we will get Prime Minister Modi to final एक कड़छी दिलाएं तो रिकॉर्ड वो बनाए. And तो हमारा सब चल रहा था. तो 2 दिन पहले हमारे पास में आता है, 1.5 दिन पहले, कि सर वहाँ पे ना वो जो आप बना रहे हैं वो आग नहीं यूज कर सकते. तो मतलब आग नहीं यूज कर सकते मतलब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड में. अच्छा, हमने सब कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उनके लोग बुलाने होते हैं, यूके से बुलाने होते हैं, उनकी टिकट वो सब कुछ कर लिया. हम सब कुछ कर चुके हैं. बड़ी सी कढ़ाई बनवाने में, ये करने में, सारी प्लानिंग. मीडिया इनवाइटेड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे रिकॉर्ड होगा, ये होगा. 250 मीडिया वाले टीवी चैनल सब कंफर्म कर चुके हैं कि संजीव कपूर रिकॉर्ड बनाएंगे, चलो कवर करेंगे, ये सब कुछ. और 1.5 दिन बाद आग नहीं यूज कर सकते. हमने कहा आग नहीं यूज कर सकते मतलब मैं बैठ के तो नहीं बना सकता खिचड़ी इतनी ज्यादा, राइट? सो वी हैड प्लान के 800 किलो करेंगे बिकॉज दैट्स इट नीडेड. हमने पहले रिकॉर्ड चेक किया कि क्या था, तो राइस एंड बीन्स के साथ में एनीथिंग ओवर 400 वी वुड हैव मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. मैं कहा नहीं, मजा नहीं है, डबल तो करते ही हैं.
So that's कैसे करेंगे, हमने कभी किया था नहीं किया था, बट विश्वास की कर ले. So anyway, आग नहीं है, क्यों नहीं है कि नहीं सर वो VVIP है ना, PM is coming, so no fire is not, सब सेफ्टी है. ये कैसे करेंगे? एंड हमने अपनी पूरा सब कुछ कर लिया, मिनिस्टर ने कोशिश कर ली, नथिंग, नहीं कर सकते. क्या करेंगे? तो वैसे कहती आप कुछ करो आप. मैं कहा मैं क्या करूं, मतलब आग नहीं. अच्छा इलेक्ट्रिक पे कैसे कर, लास्ट 1.5 दिन का टाइम है, आप इलेक्ट्रिक पे वो इतनी बड़ी कढ़ाई आप इतना कैसे करोगे, वो आप पहले मतलब उतनी बड़ी क्या आप कहाँ से करोगे? दैट इज आउट. देन मुझे याद आया कि हम होटल में ना डीजल पे कुकिंग करते हैं, पर डीजल पे भी वो तो होती है, आग तो होती है, तो स्टीम प्रोड्यूस होती है. तो हमने क्या किया वहाँ से, अच्छा द रिस्ट्रिक्शन वाज दैट एनी फायर दैट कुड बी देयर had to be 750 meters away from जहाँ पे इवेंट हो रहा था इंडिया गेट लॉन्स में. सो हमने वहाँ से पूरी एक स्टीम की पाइप डाली, वहाँ पे बॉयलर बिठाई. लास्ट दिन पे अब ये कर रहे हैं, स्टीम बनेगी या नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे वो बनाया. और हमने मतलब पूरी पाइप इंसुलेट करी सेफ्टी के हिसाब से, सारा कुछ किया. वहाँ पे स्टीम बना के यहाँ पे किया. एंड कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, मतलब हर जो चीज़ थी वो पहली बार हो रही थी. और हम मतलब बस भगवान का नाम लेके हमने वो बनाई. एंड आई कैन टेल यू देवर सो मनी, मतलब लास्ट मिनट तक ऐसे गले तक, मतलब ये यहाँ तक ऐसे था कि ये तो नहीं होने वाला. मीडिया है, वो है, सब कुछ है. मतलब इट टुक अस अबाउट 45 मिनट्स, क्योंकि अभी हमने कोई ट्रायल तो किया नहीं हुआ था इतने. अच्छा हमने फिर और भी, चलो इतना और डाल दो, तो 800 प्लान किया था, 918 जितना आ रहा था हमने क्या करते हैं, उसको क्रेन से उठा के वेइंग स्केल जो हमने स्पेशल बनाया था, उसका वीडियो मेरे ख्याल यूट्यूब पे, मतलब पसीने पसीने आ गए थे. एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैड खाली उसके साथ में पानी के साथ हमने ट्राई किया था एक रात पहले. येट इट टुक अस 45 मिनट्स. वो जो वेइंग स्केल है वो क्रैक कर रहा था, मतलब वो सारी जो चीजें हैं. एंड इट वाज नाइटमेयरिश. एंड ये तो मैंने मतलब आई कैन टेल यू 0.1% बताया है. एंड दिस कैन बी वन फुल बुक ऑफ व्हाट could have gone wrong and did not, because I believed that it would not go wrong. So it is the belief that you have. आपके पास कोशिश तो लोग पूरी करेंगे कि कैसे चीज़ ना हो, लेकिन अगर आपका विश्वास है ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता. And you talked about entrepreneurship. So entrepreneurship is actually very easy. Entrepreneurship में आप कभी भी काम करो, किसी के लिए भी काम करो, think as if it's your own work. That's it. It does not take anything more than that. In one sentence, that's what entrepreneurship is. When you're working, think that you're working for yourself. What it takes, how much you would make, whether you will make, not make, convert. And since I'm a banker's son, I have learned from my father, convert everything into money. मतलब कि you should know कि ये कुछ कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट क्या है. आपके एफर्ट की कॉस्ट आपको लगानी है तो उसकी कॉस्ट लगा लो. आपको अब इतना अर्न करना है तो ये देख लो. फिर उसके बाद में आपने कुछ भी रोटी बनानी है, आटा कितना है, उसके अंदर गैस लगनी है वो कितनी है, कोई भाड़े पे लेनी है, कोई नौकरी. सो इफ यू स्टार्ट कन्वर्टिंग एवरी. सो हम जब नौकरी करते थे, आई वाज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, आई वाज अ नौकर, राइट, बट बिकॉज आई वाज working with a feeling that it is my work, I was working like an entrepreneur. तो मतलब जैसे I'll give an example. Kitchen के अंदर when I became a chef, तो मैं सब chefs को, and because I followed when as a cook also, कि किचन में अगर आप कमर्शियल आपको एक्सपीरियंस होगा, देखेंगे एक गैस बर्नर होता है. घर में कैसे गैस होती है, लाइटर से जलाई, लाइटर जल गई, या माचिस से जलाई, या अपने आप टिक 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 करके जल जाएगी, राइट. होटल्स के अंदर कमर्शियल गैस के अंदर क्या होता है, पायलट होता है. पायलट होता है, उसमें गैस आ रही होती है, गैस जलती है उसमें, और उससे फिर आप दूसरी गैस जला सकते हैं ना. पायलट जो है वो भी कंट्रोल हो सकता है. एक उसका मतलब पायलट ज्यादा जोर से आग निकलेगी और एक थोड़ी सी जितनी एब्सोल्युटली एसेंशियल है उतनी निकलेगी. तो जब भी मैं अपना किचन में राउंड ले रहा होता था, और पायलट, इफ आई वुड से दैट गैस जबकि बंद है, कोई काम नहीं हो रहा उस पर, बट पायलट इज ऑन,
right? But if you're not working for, let's say, 2 hours and that gas range is not in use, then you don't need to switch on that pilot. So you should switch it off. आप पायलट फिर ऑन कर लेना. नहीं सर, पायलट का तो मतलब ये नहीं यही होता है ना. लेकिन अगर 2 घंटे है, 2 घंटे पायलट भी क्यों चलाना, और पायलट भी चलाना है उतना ही चलाओ जितना जरूरत है, राइट? बिकॉज इट इज, सर कितना जाएगा. सो आई वुड टेल, मैंने कहा घर में जाके ना एक काम करना, घर में जो अपनी गैस है ना वो सिम पे जला के, एकदम कम पे जला के, बिना कुछ उस पे रख के 5 मिनट से ऊपर मुझे करके दिखा दो घर में. मदर है तो थप्पड़ मारेगी, वाइफ है तो घर से निकालेगी. तब उनको हाँ सर. एंड सेम केस कि अगर आप होटल में हो तो व्हाई शुड यू हैव एसी. मतलब आज भी मेरे ऑफिस में, मेरे रूम में, इफ आई एम नॉट इन माय रूम, my AC is, I would switch it on, though it is a central AC, but I made sure कि सब अलग-अलग जगह से on or off हो सके. Even if I'm going out for lunch to lunch room in our office, I would switch it off. I'm going out for 10-15 minutes, I'd switch it off. Now, because wastage तो बिल्कुल acceptable ही नहीं है, right? So entrepreneurship is that start thinking that you will not waste, you will all understand all costs, and you will consider. So first journey, if you're working for someone else, that's good, because someone is paying for your journey. So entrepreneur बनने के लिए, if you can earn at someone else's cost, बहुत smart चीज है, right? आपने कर लिया, but at that time work as if it's your money. Don't waste. Make sure that the owner makes more money because of you. Owner should make more money because of you. If you can do that, owner, one, your job is secure, right? Two, whenever you want to become an entrepreneur, you've already done your training, for which you didn't have to lose anything. So I would always say कि पहले थोड़ी देर नौकरी करो, किसी दूसरे के काम, उनके काम के लिए, what they are paying you, do that work, but with a feeling that it's your own work. So दो चीजें होती हैं, एक आपने काम सीखा, उसके आपको पैसे मिले, एक entrepreneurship के लिए आपको पैसे मिल गए ना, आपको रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो गया. So if you keep this in mind, you'll not fail. Brilliant. Thank you very much, Chef. Any questions, students? We have 5 minutes. Any questions? Please put it on the chat box. ये opportunity आपको दोबारा नहीं मिलेगी. We'll get Chef here definitely once the pandemic is over. But any questions for now, very quickly, please think about it. You, your parents, mama, anybody wants some questions, put it in the Q&A box, please, very quickly. Yeah, somebody said that I have no question, but lucky to listen to your words, and you are my idol. Dhaval. Question. I'm just so honored to listen to you, and there are hearts and hearts and hearts. Okay. What I would assume is, we love you, sir. I love you, sir. Oh, wow. Okay. अगर कोई questions हैं, I have luckily a little right to Chef. कोई questions है मेरे को आप लिख दो. अगर बहुत ही अच्छे questions होंगे, we will put you onto Chef. मैं question भेज दूँगा. And I'm going to do after this a little test for you and what you heard, Chef, and what are the salient points of his talk. And उस पे फिर हम आपको award देंगे. Okay, so there'll be a little. किसी ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. हाँ जी. सर आपको कितना टाइम लगा सक्सेसफुल होने के लिए? आई थिंक सक्सेस के लिए टाइम तो इट्स व्हाट यू कंसिडर एज सक्सेस. मैं तो मतलब अगर एक कोई चीज़ काम कर लेता हूँ छोटा सा, तो मुझे उसमें सक्सेस मिल जाती है. इट्स सक्सेस की क्वांटिफिकेशन जो है, दैट्स अप टू अस. कुछ लोग कहते हैं हम इतने पैसे बनाएंगे तो सक्सेसफुल हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि हम दोपहर को सोएंगे तो इतने सक्सेसफुल. सो इट इज व्हाट यू क्वांटिफाई एज सक्सेस. For me, my benchmark of success is how much I have learned. So my success is that more learning I do, I know it leads to more earning. So my success I measure is that if I did not know anything, if I know more, I have succeeded, right? Because now it has always led me to more money, fame, respect, everything. But I have not quantified my success
is what is my bank balance? What is it? It's my balance of learning that I have. So I have never failed because I keep on learning. I keep on succeeding every day. So that's how I look at it. Menur Kaur wants to know, sir, we want to see you as one of the judges in a Master Chef competition again. So मैंने कुछ साल किया, वो बहुत टाइम लगता है उसमें, मतलब मैं उनको पहले भी फर्स्ट ईयर ऑल्सो व्हेन दे आस्क्ड मी, ऐसे मैं इतना टाइम नहीं दे सकता. मेरा पूरा अपना चैनल है, फूड है, एंड बट आई ट्राई एंड वो हर बार कहते हैं सर एक दिन भी आ जाओ तो भी ठीक है. सो आई ट्राई, लेट्स सी, अगर बिकॉज 3 से 6 महीने लगते हैं उसके अंदर. वो अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो ठीक है. अगर आप मेरे जैसा जो है जिसके पास में फुर्सत नहीं है, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. रिटायरमेंट की बात करें. Thank you very much, sir. Thank you. And it's been a pleasure to have you once again with us. And I think it was a very motivating speech. And ये जो बच्चे आज जो आपको सुन रहे हैं, there were about 156 of them. They, I think, thoroughly enjoyed. I'm going to take a feedback, but most certainly, I'm sure it's going to be a lot of thumbs up for you. Thank you so much. And for all the students, we have Chef Vicky Ratnani on 18th. Okay, from tomorrow we've got 2 local chefs here, Chef Sanjeev Kapoor and Chef Bali. They'll be coming here to Chitkara in the Culinary school and teaching you a lot of things. But on 18th we have Vicky Ratnani. Thank you, sir. Thank you once again. Wish you all the best in everything, and look forward. Corona jaldi jaye aur aap idhar aao humko mile. बिल्कुल. And give my love to Vicky also. Great guy. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. खाने हाथ में स्वाद है उसके, बहुत अच्छा. Thank you very much. Okay, great. Thank you. Thank you.